You are most welcome on Digital Maths. See, this is the chapter number 2 of class 8 based on NCERT syllabus linear equation in one variable. See, first of all, let me tell you what linear equation is. See, linear equation means actually a general form of equation. Suppose we are taking an example, suppose ax plus b. Here it is linear form, clear, because it represents a line. As the value of x changes, the value of both the values or equation changes, so it is a linear equation. And in one variable because we are going to use only one variable, that is, suppose here it is x is there, then x would be there. If we are using y, suppose 3y, then it would be y. So we are using only one variable, that's why it is known as linear variable in one linear equation in one variable. So you can see over here there are different terms over here, expression can be there. See, the part which is on the right side here, it is known as RHS, right hand side, and the part which is on left side, it is known as LHS, that is left hand side. So this has to be taken care. RHS and LHS should be there. Clear? Now, if moving ahead, we will be solving exercise 2.1 because more thing you will be cleared with the exercise itself. Because in this only the equation you should be knowing, that what is linear equation. Rest all can be gone through the variables. Suppose linear equation examples I could give you: 2x plus 3 equals to 0. 6x equals to 0, 3t equals to 5, 2t minus 6 equals to 0, or you can even go with suppose 6y plus 3 equals to 7. These all are linear equations. Linear equations means, suppose we are putting y equals to 0. If we are putting y equals to 0, just for an example, so here 3, because 6y will be 0 and 3 is not equal to 7, clear? So the equation should be such that it should verify the linear equation as well. So we will go through the questions as well. One by one we are going to solve the questions of the exercise. You would be understanding what linear equation is. See, linear equation represents a graph which increases as the variable increases linearly. It linearly increases as the variable increases. Suppose we have the equation 3x plus 5 equals to 0. So suppose we are putting x equals to 0. Just for an example, if we are putting x equals to 0, so the value would be, whole term would be 5. Just let this 0 would be remaining. Suppose we are having, so value would be 5. If we are putting x equals to 1, so 3 into 1, 3 plus 5 equals to 8. So as the value increases, the equation value also increases. Variable की value increase हो रही है, उसी तरह से equation की भी value increase हो रही है. So it represents a graph. Suppose here we are putting variable value and here equation value. So इक्वेशन की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी, वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज होगी तो इक्वेशन की वैल्यू इंक्रीज होगी. So this is how the linear equation या linear graph represents. So we are going to solve one by one each and every question of the exercise. So first question is, solve the following equation, that is x minus 2 equals to 7. So what you have to do is, see here minus 2 is there, so we will be adding plus to both sides. Adding plus 2 both sides, so 7 plus 2. So here plus 2 and minus 2 cancelled out. So x equals to 7 plus 2 means 9. समझ में आया? x minus 2 था, मैंने plus 2 दोनों साइड में ऐड किया है. LHS अगर आप कुछ भी करते हो तो you should do with both the side. Clear? So यहाँ पे हम लोग लिखते हैं solution. Given x minus 2 equals to 7 by adding 2 on both sides. जहाँ पे माइनस है, देखो x को आपको फैक्टर मेन बॉस बनाना है, यू समझ लो मेन बॉस बनाना है x को, आपको वैल्यू फाइंड करनी है x की. तो आपको कैसे प्योर x मिलेगा वो देखना है. तो यहाँ पे प्योर x मिलेगा बाय एडिंग 2 ऑन बोथ साइड, वी गेट x.
क्योंकि देखो x माइनस टू था, अगर मैं प्लस टू ऐड कर देता हूँ तो मुझे सिर्फ x मिलेगा, सो दैट्स व्हाई आई एम एडिंग प्लस टू ऑन बोथ साइड. So x minus 2 plus 2 equals to 7 plus 2, and as we know minus 2 plus 2 cancel हो जाएगा, minus 2 plus 2 is 0. So x equals to 7 plus 2 implies x equals to 9. यानी इसका मतलब x की वैल्यू हमें क्या मिली, 9 मिली. समझ में आ रहा है? बहुत इजी. कहीं पे भी डाउट हो फिर भी आप कमेंट कर सकते हो, यू विल बी गेटिंग श्योरली, एंड होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन. Wherever you get any confusion, you can ask directly by commenting over down, so you can get the answer solution as well. Clear? We are moving towards the next question. Second question is y plus 3 equals to 10. See, now what actually happened? Here plus 3 is there, so we need minus 3. अगर minus 3 होगा दोनों साइड में, अगर मैं कर देता हूं तो प्लस और माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, तो y हमको जो बॉस बनाना है, क्योंकि हमको y की वैल्यू फाइंड करनी. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन का मतलब जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी. तो यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी है. सो y प्लस 3, अगर मैं माइनस 3 करता हूँ, 10 है तो 10 में भी माइनस 3 करता हूँ, तो प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, तो y हमारा मेन हेड यानी बॉस हमको मिल जाएगा. फैक्टर y इक्वल्स टू 10 माइनस 3, दैट इज 7. समझ में आ रहा है? देखो हेड को बरोबर मजबूत रखना पड़ता है. बॉस की बात नहीं मानेंगे. अगर घर पे जैसे हम लोग किसी की बात नहीं मानते तो हमें कैसे, तो उसके लिए हेड बनाना पड़ता है. वी हैव टू स्ट्रिक्टली पुट फॉरवर्ड बॉस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये चीज याद रखनी है. क्लियर? सो बाय सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ द साइड वी गेट y प्लस 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 10 माइनस 3. क्लियर? अब प्लस 3 माइनस 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सो y इक्वल्स टू 10 माइनस 3 यानी y इक्वल्स टू 7. सो y की हमारी वैल्यू क्या मिली, 7 मिली. समझ में आया? बहुत इजी है, इट्स बिट इजी. जस्ट स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करो, आपको गारंटीड बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और कभी भी एग्जाम होगी यू विल श्योरली गेट गुड मार्क्स. सो डोंट वरी, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 3, 6 इक्वल्स टू z प्लस 2. देखो अब z हमारा वेरिएबल है यहाँ पे, और z के साथ क्या है, प्लस 2. तो हमको क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा दोनों साइड से, क्योंकि प्लस 2 है, माइनस 2 होगा तो 0 होगा. सो 6 इक्वल्स टू z प्लस 2. by subtracting 2 from both side we get 6 minus 2 z plus 2 minus 2. so 4 z plus 2 minus 2, z plus 2 minus 2 कैंसिल होगा तो z इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू z. लेकिन हमारा वेरिएबल हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, सो हम लोग इसको इंटरचेंज कर देते हैं, इंप्लाइज z इक्वल्स टू 4. देखो जब वेरिएबल इक्वल टू साइन के साइड वाले दोनों चेंज होते हैं ना, तो साइन चेंज नहीं होती. व्हेन वी आर चेंजिंग बोथ द टर्म्स, जैसे यहाँ पे 4 और z, 4 इक्वल्स टू z था, मैंने उसको कर दिया z इक्वल्स टू 4, तो दोनों के दोनों वेरिएबल इधर से उधर हुए, तो साइन चेंज नहीं होती. हाँ, अगर एक वेरिएबल इधर से उधर होता है तो माइट बी पॉसिबल दैट साइंस वुड चेंज, बट यहाँ पे हम लोग दोनों वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, सो साइन वुड नॉट बी चेंजिंग. क्लियर? Moving ahead for the question number 4, 3 upon 7 plus x equals to 17 upon 7. देखो अब हमारे पास क्या है, 3 upon 7, तो हम लोग यहाँ पे प्लस 3 upon 7 है तो माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग. नाउ by subtracting 3 upon 7 from both the side we get 3 upon 7 minus 3 upon 7 plus x, 17 upon 7 minus 3 upon 7. देखो ये वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, आपको पता है प्लस और माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा. सो बॉस जो है आपका हेड एकदम फ्री हो जाएगा, वेरिएबल की वैल्यू आपको मिल जाएगी. नाउ यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा. देखो 17 अपॉन 7 माइनस 3 अपॉन 7. सो 7 दोनों में कॉमन है तो वी कैन राइट 7, और ऊपर क्या हो जाएगा 17 माइनस 3. 17 माइनस 3 क्या होता है, 14 अपॉन 7, दैट इज इक्वल्स टू 2. क्लियर? तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, ये 14 अपॉन 7 है, 2/7 नहीं कर देना, 14 अपॉन 7 है, डोंट गेट कंफ्यूज. सो आपकी वैल्यू आपको मिल गई, दैट इज 2. सो x की वैल्यू इसी तरह से हमको मिलेगी, x इक्वल्स टू 17 माइनस 3 अपॉन 7. सो x इक्वल्स टू 14 अपॉन 7, यानी x की वैल्यू हो गई आपकी 2. सी
आप वीडियो देख रहे हो, आपको कभी कोई समझ में नहीं आता है, यू कैन गो विथ रिवर्स, रिवर्स कर सकते हो, आपके हाथ में आपका मोबाइल फ़ोन है, थोड़ा सा रिवर्स करो, देखो, नोट डाउन करना है नोट डाउन करो, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ये तो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, एग्जाम्स में कोई सॉल्व करवाएगा नहीं। सो प्रैक्टिस इज मस्ट, आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। बाकी क्वेश्चंस कोई भी हो, अगर प्रैक्टिस है, प्रॉपर आ रहा है समझ में, सो इट वुड बी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, 6x इक्वल्स टू 12। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, 6 मल्टीप्लीकेशन में है x के साथ, तो आपको क्या करना है, दोनों साइड में 6 से डिवाइड कर दो, डिवाइड 6 बोथ साइड, तो यहाँ पे 6 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 6 2 ज़ा 12, तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 2। ठीक है, यही चीज़ हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करते हैं। गिवन 6x इक्वल्स टू 12, by dividing 6 both sides, by dividing 6 both sides we get, हमको क्या मिलेगा, 6x अपॉन 6 और 12 अपॉन 6। अब ऑब्वियस सी बात है, 6x है तो 6 तो कैंसिल हो जाएगा, और हमने बताया 6 2 ज़ा 12 होता है। टेबल प्लीज़ आपको याद करने में, देखो टेबल तो याद करने ही पड़ेंगे, टेबल के बिना पॉसिबल नहीं है। सो x इक्वल्स टू 2 हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। समझ में आ रहा है, क्लियर? आराम से 1 बाय 1, और खुद कोशिश करो, ये तो मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपने देखा और आपको आ गया, ऐसा नहीं होता, मैथ्स में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सो खुद प्रैक्टिस करो। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। t अपॉन 5 इक्वल्स टू 10। सी t अपॉन 5 मतलब अब क्या हो गया है, हमारे डिवीजन में है, t अपॉन 5 मीन्स 5 जो है डिवीजन में है। अब क्या करना पड़ेगा, अब आपको दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि देखो पहले मल्टीप्लिकेशन में था तो डिवीजन किया, अब दोनों साइड आप 5 से मल्टीप्लाई करो तो आपका 5 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पे डिवीजन, तो 5 तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 10 5 ज़ा 50, तो t की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 10 5 ज़ा दैट इज 50, t की वैल्यू आपकी 50 आ गई। समझ में आ रहा है, बस यही आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। देखो सॉल्यूशन, गिवन t अपॉन 5 इक्वल्स टू 10 बाय मल्टीप्लाइंग 5 बोथ साइड। देखो स्टेप्स लिखने ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप देखो आगे जब चल के जाओगे तो बहुत इजीली आप कर सकते हो, कोई ये सब मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अभी राइट नाउ हम लोग सीख रहे हैं। सो हर एक स्टेप बाय स्टेप करना ज़रूरी है, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और हमें लिखना कैसे है। सो बाय मल्टीप्लाइंग 5 बोथ द साइड वी गेट t अपॉन 5 इंटू 5 10 इंटू 5। अब पता है 5 और 5 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो 5 कैंसिल हो गया तो 2t, और 5 10 ज़ा 50, सो t की वैल्यू, हमारे हेड की वैल्यू आ गई, t इक्वल्स टू 50। भाई बॉस जो है उसकी जो भी वैल्यू है वो माननी पड़ेगी आपको, सो दैट इज, ये आपकी वैल्यू आ गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। कहीं पे भी डाउट लगे आराम से कमेंट करो, विल श्योरली गेट टू यू, you will be getting this solution. Digital maths is always with you. Clear? Now question number 7, 2x upon 3 equals to 18, 2x upon 3 equals to 18। अब इसको दो स्टेप्स में करना पड़ेगा, वैसे डायरेक्टली मैं बताऊं तो 2x upon 3 equals to 18 दिया हुआ है, तो क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो, दोनों साइड में मल्टीप्लाई बाई 3 किया तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो हम लोग बाद में सोचते हैं, बट ये कैंसिल हो गया। अब क्या है आपके पास बचा, अब आपके पास बचा 2x इक्वल्स टू 18 अपॉन 3, 18 इंटू 3 सॉरी। सो अब क्या करना है, डिवाइड 2 बोथ साइड, अब दोनों साइड में 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ का 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड हियर 2 9 ज़ा 18, सो 9 3 ज़ा कितना होता है 27। सो आपको x की वैल्यू क्या मिली 27। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। चलो, गिवन 2x अपॉन 3 इक्वल्स टू 18, बाय मल्टीप्लाइंग 3 बोथ द साइड वी गेट 2x अपॉन 3 इंटू 3 एंड 18 इंटू 3। सो यहाँ पे 3 3 कैंसिल हो गया और 18 3 ज़ा आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 54। मैंने तो मुझे कैलकुलेशन किया हुआ तो मुझे पता है, बट आपको कैलकुलेशन करना है। सो 2x इक्वल्स टू 54। अब क्या करना है, देखो अब 2x बच गया मल्टीप्लिकेशन में, तो नाउ बाय डिवाइडिंग 2 बोथ साइड वी गेट, अब 2 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, वी आर डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय 2 फ्रॉम बोथ द साइड,
So we get 2x upon 2 equals to 54 upon 2, that is x by 27. क्लियर? अभी राइट नाउ मैं हर एक स्टेप बता रहा हूँ, आगे की एक्सरसाइज में आपको समझ जाना है कि क्या स्टेप किया होगा. ठीक? सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट एक्सरसाइज अच्छे से प्रैक्टिस करो, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको इजी और इजी लगेगी, फिर उसके बाद और मीन्स लास्ट तक आप सारा का सारा चैप्टर आपको परफेक्ट हो जाएगा. सो दैट्स वाई प्रैक्टिस हार्ड. क्लियर? नाउ मूविंग अहेड, x की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई है. क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं हम लोग. 1.6 इक्वल्स टू y अपॉन 1.5. 1.6 इक्वल्स टू y अपॉन 1.5. देखो अपॉन में 1.5 है, मीन्स आपको डिवीजन में 1.5 है, सो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो गिवन 1.6 equals to y upon 1.5, by multiplying 1.5 both the side we get 1.6 into 1.5 y upon 1.5 into 1.5. तो 1.5 1.5 यहाँ पे तो कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पे हमारा हेड हो जाएगा y. इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1.6 into 1.5, तो जो आंसर आएगा that will be the value of y. So 1.6 into 1.5 is 2.4. सो आपको y की वैल्यू मिली, लेकिन y मैंने आपको बताया y को आप हमेशा लेफ्ट, जो भी वेरिएबल है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 2.5. तो हमारा आंसर आ गया y इक्वल्स टू 2.4. क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते. देखो मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, ऐसा सोचो कि सर ने मल्टीप्लाई करके रख दिया कॉपी पेस्ट कर दो, नहीं. प्लीज मल्टीप्लिकेशन तो आप खुद करो तो बेटर है, ताकि आपको सीखने को मिलेगा ना, आपकी मल्टीप्लिकेशन स्ट्रांग होगी. मुझे क्या फ़ायदा, मैं तो सारा चीज़ बताने के लिए तैयार हूँ, बट आपका भी तो प्रैक्टिस होना ज़रूरी है. सो प्रैक्टिस इट हार्ड. क्वेश्चन नंबर 9, 7x minus 9 equals to 16. 7x minus 9 equals to 16. देखो अब पहले क्या है, यहाँ पे -9 है, तो दोनों साइड में +9 करना पड़ेगा. सो बाई एडिंग 9 बोथ द साइड वी गेट, दोनों साइड में 9 ऐड करेंगे, सो 7x minus 9 plus 9 और 16 plus 9, तो -9 plus 9 तो कैंसिल हो गया, तो 7x equals to 25, क्योंकि 16 plus 9 कितना होता है 25. नाउ यहाँ पे 7x यानी 7 मल्टीप्लिकेशन में है हमारे x वेरिएबल के साथ. सो व्हाट वी हैव टू डू, जब भी कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में है देन वी हैव टू डिवाइड द सेम नंबर ऑन बोथ द साइड, और अगर डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई करते हैं. सो हियर इट इज इन मल्टीप्लिकेशन, सो वी विल डिवाइड. Now by dividing 7 both the side we get 7. हम लोग क्या करेंगे, 7 दोनों साइड में डिवाइड करेंगे, so we get 7x upon 7 equals to 25 upon 7 implies x equals to 25 upon 7, क्योंकि 7 7 तो कैंसिल हो गया, x हमारा बॉस उसकी वैल्यू आई 25 upon 7. क्लियर? देखो कहीं पे भी डाउट हो यू कैन कमेंट, नो इश्यूज, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोशिश करेंगे, बट सबसे पहले आप 2-3 बार उसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि सारा का सारा सॉल्यूशन दे रहा हूँ तो उसका आगे और कैसे सॉल्यूशन दूंगा. हाँ कोई और नया सम है जो नहीं आ रहा है, कहीं पे आपने देखा है, सो दैट यू कैन कमेंट, ताकि उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दे सकूँ. बट कहीं कोई डाउट है तो वो चीज़ आप पूछ सकते हो, बाकी सेम सम्स तो वही चीज़ है. क्वेश्चन नंबर 10, 14y minus 8 equals to 13. Now you are know that variable y, our one variable is y, here -8 is there. So now what we will do, अब तो आपको पता चल गया होगा, इतने सारे सम्स किए हैं तो आइडिया तो लग गया होगा कि -8 अगर वेरिएबल के साथ है, सो वी हैव टू ऐड +8, मीन्स +8 आपको दोनों साइड ऐड करना पड़ेगा. सो बाय एडिंग 8 बोथ द साइड वी गेट 14y minus 8 plus 8 equals to 13 plus 8. सो +8 -8 कैंसिल हो जाएगा, सो 14y इक्वल्स टू 13 + 8 मीन्स 21. नाउ अब y के साथ 14 जो है मल्टीप्लिकेशन में, इट इज इन मल्टीप्लिकेशन, सो वी हैव टू डिवाइड 14 बोथ द साइड, वी हैव टू डिवाइड 14 बोथ द साइड. सो नाउ बाय डिवाइडिंग 14 बोथ द साइड वी गेट 14 by y equals to upon 14, 21 by 14 equals to, so 14 कैंसिल हो जाएगा, so y equals to 3/2. 3/2 क्यों? See look here, 21 upon 14 equals to 7 into 3 is 21 and 7 2s are 14, तो 7 cancel, so we get y equals to 3/2. समझ में आ रहा है? See practicing is in your hand, बाकी explanation I will be giving to you, but practice आपको करनी पड़ेगी. Main thing is that.
Question number 11. Moving on to the question number 11. 17 plus 6p equals to 9. 17 plus 6p equals to 9. So you can see वेरिएबल हमारा 6p है, उसके साथ प्लस 17 है, यानी हमको 17 दोनों साइड से माइनस करना पड़ेगा. सो सॉल्यूशन गिवन 17 प्लस 6p इक्वल्स टू 9. ये तो क्वेश्चन था, एज इट इज लिख दिया. बाय सब्ट्रैक्टिंग 17 बोथ द साइड वी गेट, दोनों साइड से 17 हम अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो व्हाट वी विल गेट 17 माइनस 17 प्लस 6p एंड 9 माइनस 17. चलो ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस. यहाँ पे देखो 9 माइनस 17 है, 9 जो है प्लस है, 17 जो है नेगेटिव है. तो यहाँ पे ये तो पता चल गया कि 7 नेगेटिव माइनस आएगा, माइनस होगा. तो 17 माइनस 9 होता है 8. लेकिन साइन किसकी लगेगी, कोई बता सकते हैं? साइन जो है हमें पता है कि हमेशा जो बड़ा नंबर होता है उसकी साइन लगती है. तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है 17. सो साइन भी 17 की लगेगी. दैट इज आंसर हमारा आएगा -8. ये चीज़ खास याद रखनी है, जो भी बड़ा नंबर होता है उसकी साइन लगती है. अगर दोनों प्लस है तो चलो प्लस साइन आ जाएगा. इफ बोथ नंबर सपोज -9 प्लस 17 होता तो +26 आ जाता, नो इश्यूज. या फिर -9 और -17 होता, -9 और -17 तो -26, क्योंकि दोनों की साइन सेम है. लेकिन जो प्लस और माइनस होता है, जैसे +9 -17, सो वी आर गेटिंग -8. इसी जगह -9 प्लस 17 होता तो वी वुड बी गेटिंग +8, क्योंकि बड़ा कौन है 17. तो 17 की जो साइन होगी वो लगेगा. वो चीज़ वैसे आपको पता है बट फिर भी बता देता हूँ. सो यहाँ पे हमको आंसर मिला -8. सो 6p इक्वल्स टू -8. अब 6 मल्टीप्लीकेशन में है p के साथ. सो नाउ बाय डिवाइडिंग 6 बोथ द साइड वी गेट. अब क्या करना है, 6 को दोनों साइड से डिवाइड करना है. सो 6p अपॉन 6 इक्वल्स टू -8 अपॉन 6. 6 कैंसिल हो जाएगा. सो विल गेट p इक्वल्स टू -4/3. अब आप बोलोगे -4/3 कैसा है सर, -8/3 6 था. सो -8/6 इक्वल्स टू -4 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 2. सो 2 कैंसिल हो गया आपका. सो -4/3. सो p इक्वल्स टू -4/3. क्लियर, समझ में आ गया होगा. आई होप हर एक चीज़ पता चल गई होगी. नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है. अब मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चंस डाउट सॉल्व हो गए होंगे और आपको सारा कुछ समझ में आ रहा है, प्रॉपर वे में समझ में आ रहा है. तो भी आप एक बार कमेंट कर दो कि हाँ समझ में आ रहा है, ताकि मुझे पता चले कि हाँ इसी तरह से मुझे कंटिन्यू रखना है या कुछ चेंजेस, अगर कोई सजेशन है. क्लियर. सी वी आर यूजिंग इंग्लिश हिंदी बोथ, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को कहीं कन्फ्यूजन हो जाती है. सो वी आर यूजिंग बोथ द थिंग्स. इट इज़ नॉट दैट कि इंग्लिश में पढ़ा नहीं सकते एंड ऑल, बट वी कैन, बट दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स. Clear. So you can suggest anything if you want to change anything else. So now question 12 is x upon 3 plus 1 equals to 7 upon 15. See x के साथ upon 3 तो है ये, बट उसको बाद में हम लोग देखेंगे. First of all we will solve out +1. So +1 is there, so we have to subtract 1 on both the side. By subtracting 1 both the side we get x upon 3 plus 1 minus 1, 7 upon 15 minus 1. See here +1 minus 1 तो कैंसिल हो जाएगा. Now 7 upon 15 minus 1. So here we have to take the LCM, और LCM आपको पता है कि 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो LCM is 15. तो हो जाएगा 7 minus 15 upon 15. क्योंकि LCM लेते हैं तो इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन में भी 15 आएगा, तो इस तरह से होगा. तो 7 minus 15 दैट इज आंसर आ जाता है -8 upon 15. 7 minus 15 इज माइनस, क्योंकि 15 minus 7 क्या होता है 8, और बड़ा कौन है 15, तो 15 की साइन लगेगी, दैट इज -8 upon 15. क्लियर. सो मूविंग अहेड, x upon 3 equals to 7 minus 15 upon 15. सो x upon 3 equals to -8 upon 15. अब देखो डिवीजन में 3 है, x के अपॉन में 3 है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ द साइड. So now by multiplying 3 both the side we get x upon 3 into 3 equals to -8 upon 15 into 3. So ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 3 5 15 यानी -8 upon 15 था, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 3 किया तो 3 1 3,
3 5 ज़ा 15. सो आंसर आएगा हमारा -8/5. सो x इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा -8/5. सो x इक्वल्स टू -8/5. सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. थैंक यू वेरी मच. अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, पसंद आ रहा है, यू शुड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल, सो दैट दे कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम दिस. Clear? Be with us. Any doubt, anytime, comment with us, ask the doubt and get the solution. We are with you. Thank you very much.